Good afternoon, class. I welcome you all in the series of this geography lectures. We are right now going through the chapter Life in Tropical and Subtropical Region. In this chapter, lastly, we have discussed about the Amazon basin, how the life in Amazon basin goes, the climate, the vegetation, people, and wildlife. Amazon basin lies in the tropical region of the world. That's why the climatic factors are subverse and very different from the subtropical region of the world. Now, today we are going to discuss about the Ganga Brahmaputra basin. In this topic, Ganga Brahmaputra basin lies in the subtropical region, and we will be discussing about the differences that make tropical and subtropical region different from each other. And we will be comparing the wildlife, climatic factors, vegetation, and people here. Ganga Brahmaputra basin is the fastest growing deltas of the world. Ganga originates from Gangotri. Let us take a look firstly on the map of India, and let me make you understand what is a subtropical region. I have told you in the earlier video that the subtropical region is something that lies above or below. The subtropical region lies above or below the line of tropics. So, if we draw the map of India like this, here it is the line of Tropic of Cancer. The line of Tropic of Cancer passes through North India, and this is your subtropical region. I have told you in the last video that 5 degree up, 5 degree below. This can be taken as a example for what is subtropical region. It is not under the blockade of the tropics. That means the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are two tropics, and this region does not lie under the tropics. It is beyond the tropic or in the tropic, but at the border of the tropic line of tropic. So it is called the it is called the subtropical region. Ganga, the river Ganga, originates from a place in Uttarakhand called Gangotri. Here Ganga originates and then flows towards the northern region of the India. In this development, when the river flows, you can see that the river is joined by many of its tributaries. What are tributaries? ट्रिब्यूट शब्द का हिंदी अर्थ होता है किसी को तोहफा देना। तो ट्रिब्यूट जो शब्द है ये बताता है कि ये नदियां अपना पानी और अपना सिल्ट लेके गंगा नदी में मिल जाती हैं, इसीलिए इन्हें ट्राइब्यूटरी कहते हैं, यानी सहायक नदी कहते हैं। गंगा के फ्लो को बढ़ाती हैं, गंगा की गहराई को बढ़ाती हैं, उसकी पानी की मात्रा को बढ़ाती हैं, है ना। और इस तरह से ये रिवर जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां से ये बिहार, उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल तक जाती है और वहां पर गंगा सागर में गिर जाती है। गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर इसकी सहायक नदियों में गोमती, गंडक, चंबल, कोसी, सोन ऐसी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके फ्लो को लगातार मेंटेन करते हुए इसे बहुत दूर तक घाघरा बहा के ले जाती हैं। घाघरा का ही एक नाम सरयू है जो अयोध्या में बहती है। आपने नदी सरयू अगर देखी है तो उसकी गहराई से अंदाजा लगाइए कि ऐसी बड़ी नदी जब गंगा में मिलती है तो गंगा को कितनी बड़ी मात्रा में फ्लो, उसको कितनी अच्छी स्पीड और कितनी गहराई मिलती होगी, कितना अच्छा सिल्ट मिलता होगा। तो ये जो मध्य गंगा घाटी है, यानी गंगा नदी जहां जहां से होके बहती है, अपने सहायक नदियों से मिलते हुए जहां जहां से भी होके बहती है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे क्वालिटी का एलुवियल सॉयल
अपने साथ कैरी करके ले जाती है। ये अलूवियल सॉइल हमेशा इसकी कोस्ट पर जो है, इसके किनारों पर हमेशा ये जमा हो जाता है और इससे ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ बन जाता है। क्षेत्र कैसे उपजाऊ बन जाता है? अलूवियम जो रहती है, जो सिल्ट रहती है, जो नदियों द्वारा ले जाई जाती है, वो किनारों पर इकट्ठा हुई, फिर हवा आई, उसको उड़ाकर लेके जाती है बहुत दूर तक धूल की तरह। एक नई परत जो है जमीन पर बिछ जाती है बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक। अब आप सोचेंगे कि अगर नदी बह रही है तो नदी के किनारे की ही भूमि उपजाऊ होगी। नहीं, नदी के आसपास बहुत दूर तक भूमि उपजाऊ हो जाती है, बस सिल्ट वहां पहुंचना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो इसे कैरी करते हैं। तो इस जहां से भी गंगा नदी बहती है, जहां इसके पार्ट चौड़े हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट अपने साथ कैरी करती है। वो इसे जो है गंगा घाटी के क्षेत्र को, यानी गंगा के आसपास के पूरे क्षेत्र को उपजाऊ बनाता है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक जाके बहती है। ठीक है, बंगाल जाने से पहले ये कई और सहायक नदियों से मिलती है। उसी में से एक सहायक नदी या एक अपने आप में बड़ी नदी वो है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये दोनों मिलती नहीं है वास्तव में। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले माना जाता था कि क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है वो उसकी जो ओरिजिन है वो चोमदोंग करके कोई जगह तिब्बत में वहां से थी, पर अब माना जाता है कि माउंट कैलाश का जो लेक है, जिसे मानसरोवर लेक कहते हैं, कैलाश पर्वत के बगल में, जो कि इस समय तिब्बत में है, वहां से ये नदी निकलती है। तो माउंट कैलाश से या कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। ये वहां से निकलकर तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर ये आती है आपके बांग्लादेश में, फिर वहां से अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है। तो अगर हम पूछे ये सवाल कि भारत में ब्रह्मपुत्र कहाँ से इंटर करती है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में बहती है। असम से फ्लो करते हुए फिर ये क्या कहते हैं, नीचे की तरफ बांग्लादेश की तरफ वापस लौट जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। जमुना ये वो जमुना नहीं है जो भारत में आध्यात्मिक दृष्टि से देखी जाती है, बल्कि कहते हैं बांग्लादेशियों में जमुना जो है वो नदी के पानी को देखकर उसका नाम रखा गया है बस। तो अब क्या कहते हैं, कैलाश मानसरोवर लेक रीजन से निकलती है तिब्बत से, वहां पर इसे सांगपो कहा जाता है। ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ईस्ट डायरेक्शन में इसलिए फ्लो करती है क्योंकि ये स्लोप वाला एरिया है। ठीक, इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम। ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है, उसके बाद असम में फ्लो करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है पूरे विश्व का। ठीक है, अब क्लाइमेट कैसा है? अब देखिए, क्योंकि ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो जहां भी सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां बारिश ज्यादा नहीं होती। वहां बारिश डिपेंड करती है कि मॉनसून कब आएगा। तो भारत में मॉनसून 2 जगहों से आता है, जिसमें से जो नॉर्थ साइड में आता है वो बे ऑफ बंगाल से आता है। तो बे ऑफ बंगाल में मॉनसून जो है, मॉनसून की हवाएं एंटर करती है, अपने साथ बादल और बरसात लाती हैं। तो उन्हीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डिपेंड करता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में सारे मौसम आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन यानी अमेजोन बेसिन में बारिश, हर दिन बारिश होती है और वेट क्लाइमेट होता है, ठंडा उंडा नहीं होता। लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में सारे प्रकार के मौसम आते हैं। गर्मी, बहुत गर्म वाली गर्मी, अच्छी खासी बारिश, बाढ़ लाने वाली बारिश, और उतनी ही ठंडी। तो हम सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। तो as Ganga and Brahmaputra basin is located in the subtropical monsoon region, the climate of this region consists of hot summer, wet monsoon and cold winter. Most of the rain occurs in June and September. अब हमको पता है कि बारिश किस महीने में होती है, हम सब ट्रॉपिकल रीजन में ही रहते हैं, तो जून और सितंबर के बीच में यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। अब ब्रह्मपुत्र रीजन जो है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर के अराउंड, इसलिए ये क्या कहते हैं वेटेस्ट रीजन है विश्व का। ऑन द अदर हैंड, गंगा बेसिन रिसीव्स कंपैरेटिवली लो रेनफॉल
Sometimes the rivers of both the basins overflow and cause floods. These regional floods are very common in feature. इन दोनों गंगा दूसरे दूसरे स्थान पर गंगा में जो है वहां पर रेनफॉल थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम कंपैरेटिवली। गंगा ब्रह्मपुत्र के हिसाब से गंगा बेसिन में थोड़ी कम बारिश होती है, लेकिन इन दोनों एरियाज में फ्लड जो है वो कॉमन है। जैसे सोन नदी को बिहार के आंसू कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है सोन नदी में। नेचुरल वेजिटेशन, अब मैंने बताया कि अगर सब तरह के मौसम होते हैं, ठीक है, तो सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के फल, सब कुछ पाया जाएगा। बहुत सारा पानी होता है, मानसून वाली बारिश होती है, तो चावल की खेती अच्छी होगी। चावल की खेती, देखिए जब भी चावल होता है बारिश होती है, गर्मी में चावल जो है वो बैठाया जाता है, उसके बाद बारिश आते आते उसे खेतों में फिर से, जिसको वेट राइस कल्टीवेशन किया जाता है, वो जिस खेत में ले जाना होता है वहाँ उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद वो बारिश पर ही निर्भर रहता है, कई बार बाढ़ में डूब भी जाता है। तो वेट राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा कि बारिश में होने वाले और चीज़ों में एक होता है मलबेरी यानी शहतूत। शहतूत जो होता है उसकी पत्तियां जो है वो सिल्क के कीड़े, सिल्क वॉर्म जो होता है, सिल्क वॉर्म वही पत्तियां खाता है। इन एरियाज में शहतूत के पेड़ बारिश में होते हैं, तो इससे ये हुआ कि सिल्क की जो क्या कहते हैं कल्चर है, सिल्क का जो कल्चर करना है हमको, तो इंसेक्ट्स पालने के लिए हमें शहतूत के पेड़ चाहिए, पत्तियां चाहिए, वो भी मिल जाता है। तो यानी सिल्क अच्छा होगा। सबसे पहले हो गया आपका वेट राइस कल्टीवेशन, मानसून पर डिपेंड है। दूसरा, अच्छे पेड़ पौधे हो रहे हैं तो वहां पे शहतूत हो रहा है, सिल्क की अच्छी प्रोडक्शन होगी, टी की अच्छी प्रोडक्शन होगी। टी में भी बहुत पानी लगता है। चाय पत्ती बनाने के लिए हम बागानी करते हैं आसाम में जब, तो वहां भी काफी पानी लगता है। तो वो हिली रीजन में बनाया जाता है, पर पानी को ठहरना नहीं है, पानी को स्लोप पे रखना है। पानी पेड़ों को लगे, उसके बाद नीचे की तरफ बहता हुआ चला जाए। अगर पानी बहुत ज्यादा लग जाए टी के पेड़ों में, चाय की पत्ती के पेड़ों में, तो वो भी खराब कर देता है उसे, इसलिए वो स्लोप पे लगाया जाता है। खैर, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब वो ट्रॉपिकल भी है, डेसिडुअस भी है। डेसिडुअस वो होता है जो अपनी पत्तियां गिरा दे, ट्रॉपिकल मतलब होता है जो एवरग्रीन रहे। तो यहाँ के पेड़ जो है, क्योंकि हर मौसम को झेलते हैं, इसलिए ड्राई और क्या कहते हैं उसमें ड्राई सीजन में अपनी नई पत्तियां उगाना शुरू करते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। ठंडियों में अपनी पूरी पत्ती गिरा देते हैं, और जब बारिश होती है तो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। अपनी जो लीव्स है उनको वैक्स की कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है, गम रिलीज करते हैं। तो पेड़ यहाँ पर जो है वो हर मौसम में, जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार बिहेव करते हैं। वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं। जब क्या कहते हैं बारिश होगी तो अपने क्या कहते हैं पूरे शबाब पे रहेंगे, वो अपना सारी हरियाली पूरी फैलाए रहेंगे। ठंडी आएगी, उनके पतझड़ का मौसम आ जाएगा, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, फिर नए कोम्पल निकलते हैं। ड्राई सीजन में अपने आप को बचाने के लिए, ड्राई सीजन में अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर से अपना काम चलाते हैं, अपनी पत्तियां वहां भी शेड कर देते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इस एरिया में पाया जाता है। The delta region from the important trees found in this forest are sal, teak, bamboo, peepal. The delta region where there is a mixing of saline and fresh water has mangrove forest. जहाँ पर जिस डेल्टा रीजन में समुद्र का पानी मीठे पानी से मिलता है, वहाँ पर मैंग्रोव के जंगल होते हैं। तो ये आपको सुंदरबन में मिलेगा। जहां भी क्या कहते हैं मैंग्रोव होगा, तो इसका मतलब वहां पर सैलाइन वाटर, फ्रेश वाटर से मिल रहा है। गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जो है, जब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं तो वहां पर ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों आपस में मिलते हैं, वहां मैंग्रोव के जंगल पैदा होते हैं। इन मैंग्रोव के जंगलों को सुंदरी कहा जाता है बंगाल में, इसीलिए जो जंगल बंगाल में मिलते हैं समुद्र के किनारे, वहां पर आप उस जंगल का नाम सुंदरबन रखा गया है। अब क्योंकि हर तरीके का मौसम होता है, तो हर तरीके के जानवर भी होंगे। बड़े से लेके छोटे तक लगभग हर प्रकार के जानवर इस मध्य गंगा घाटी वाले इलाके में पाए जाएंगे। असम में जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, उसके बाद हाथी होते हैं बड़े बड़े, उड़ीसा में असम में दोनों जगह पे। बंगाल में आपका बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर होता है। ये तो जानवर हो गए जो जमीन पर रहते हैं। अब वो जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं वो भी बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे, रेप्टाइल्स बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे, है ना। लगभग हर तरीके के, क्योंकि हर तरीके का मौसम है तो हर तरीके के जानवर भी आपको मिल जाएंगे। द गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इज रिच इन वाइल्ड लाइफ. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. द एनिमल फाउंड आर डियर,
rhinoceros, tiger, elephant, monkey. Delta region has crocodile, alligator, and the famous Royal Bengal tiger. Excellent variety of freshwater fish such as rohu, hilsa, catla are also found. अब हम देखते हैं पीपल. अब पीपल में तो हम ही लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी ये शुरू होता है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. एज अ क्लाइमेट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है. तो सब कॉन्टिनेंट जो है, ये जो अपना नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा. एग्रीकल्चर अगर प्रॉस्पेरस होगा तो सबको खाने को मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा तो लोग भाई जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ रहेंगे. तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. मोस्ट पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन देयर मेन ऑक्यूपेशन. द एडवांटेजेस विच सपोर्ट एग्रीकल्चर आर इन द इंटायर बेसिन आर द पेरेनियल रिवर डिपॉजिट फर्टाइल एलुवियल सॉयल हियर फ्रॉम द माउंटेन्स. पेरेनियल का मतलब होता है साल भर बहने वाली नदियाँ, सूखती नहीं हैं. साल भर बहने वाली नदियाँ जो है अपने साथ बहुत सारा एलुवियल सॉयल लाती हैं माउंटेन से. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन. यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, चाहे सूखा ही पड़ जाए. फार्मिंग इज ईजियर इन फ्लैट लो लैंड्स. अब गंगा के पास बहुत बड़ा प्लेन इलाका है, मध्य गंगा घाटी, खासकर हमारा इलाका उत्तर प्रदेश, फिर असम, उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, उसके बाद आपका ये बिहार, ये तीनों जगह प्लेन है. थोड़ी बहुत क्या कहते हैं ऊंच नीच आपको हिली एरिया मिल जाएगा बंगाल में, पर वहाँ भी नहीं. बंगाल भी लगभग प्लेन एरिया है. अब प्लेन एरिया है, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे काम करना बड़ा आसान है. आपको ट्रैक्टर लेके पहाड़ पे नहीं चढ़ना है. Modern farming techniques are applied now. On the western side of the Ganga plains, cotton, sugar, cane and wheat and the other chief crops. Eastern side grows rice, sugar, cane and jute. Numerous agricultural based industries have developed in the Ganga Brahmaputra basin. The important industries are cotton, jute, silk, textile, food processing and sugar. Tea industry is the main industry in the Brahmaputra plains. ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में टी इंडस्ट्री जो है वो काफी बूम करती है. द रीजन इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. इट्स ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज and oil refineries. Rural areas are also